We now request you all to rise in his honor. Please welcome the chief guest with a huge round of applause. A very warm good morning to everyone here. It is with immense pleasure that we welcome you all to the 5th Dr. Rajaram Jaipuria Memorial Lecture. The topic of this lecture is the rise of India as Vishwaguru, Naya Yug, Nai Uchaiyan. We are honored to have with us our esteemed guest, the Honorable 14th President of India, Shri Ram Nath Kovind ji. And Chairman of Seth Anandram Jaipuria Group of Educational Institutions, Shri Shishir Jaipuria. The Vice Chairperson, Shri Saket Jaipuria. And all the dignitaries who have joined us today. Today's lecture is also being live streamed and thousands of people are connected with us online. Everyone's presence elevates this occasion. Please join me for a round of applause. Let us begin this event on a patriotic note. May we request everyone to kindly rise for the national anthem. We request everyone to sing along. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. In the Indian tradition, the lighting of the lamp holds deep significance, especially in events celebrating knowledge, wisdom, and auspicious beginnings. May I request the esteemed dignitaries on the dais to come and light the auspicious lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः
Thank you, everyone. We now request you all to take your seats. To begin this auspicious ceremony, we invite our students to invoke the blessings of Ma Saraswati and recite a Guru Vandana.
Thank you for that wonderful rendition. Let's take a moment to reminisce and celebrate the inspiring moments from the previous lectures and special moments of the group. Dr. Rajaram Jaipuria Memorial Lecture was launched in the year 2019 to pay homage to the late philanthropist, industrialist and educationist Dr. Rajaram Jaipuria. The lecture is an annual event that features an illuminating discourse by an eminent personality on a subject of national significance. The topic of each lecture represents the progressive vision of Dr. Rajaram Jaipuria. Born in 1934, Dr. Rajaram Jaipuria was an inspiring entrepreneur whose zeal for nation building manifested in different aspects of his professional and philanthropic life. He was a leader par excellence in managing industries like textiles, sugar, synthetic fiber, and education. A man rooted in traditional values, Dr. Jaipuria was equally a strong proponent of the progressive thought. He desired to choose the medium of education as the most powerful tool to serve the nation. Pursuing this vision, he took Seth Anandram Jaipuria Group to great heights by setting up institutions in all verticals of education. Today, the group has the strength of 21 K-12 schools, 5 preschools, 2 business schools, and a premier teachers training academy named Samarthya Teachers Training Academy of Research, STAR. Dr. Rajaram Jaipuria also remained actively engaged in several philanthropic projects, which included establishing the Jaipuria Smriti Bhavans, affordable guest houses for pilgrims in the holy cities of Haridwar, Vrindavan and Chitrakoot. In the year 2000, he was instrumental in establishing Ram Darshan, a monument in Chitrakoot dedicated to the life and work of Lord Ram. A coffee table book on Ram Darshan was released in 2018 by the Honorable President Shri Ram Nath Kovind. To pay an illustrious tribute to the distinguished life of Dr. Rajaram Jaipuria and to honor his legacy, Dr. Rajaram Jaipuria Memorial Lecture was conceived by his son, Shri Shishir Jaipuria, in the year 2019. The first Dr. Rajaram Jaipuria Memorial Lecture, held on 30th April 2019, was delivered by Mr. Venkaiah Naidu, the former Vice President of India, in New Delhi, on the topic Education, Entrepreneurship and Ethics. My dear brothers and sisters, I am extremely happy to be here today this morning at this magnificent convention center named after Dr. Bhimrao Ambedkar to deliver the first Dr. Rajaram Jaipuria Memorial Lecture. I am therefore glad that the ideals and values which Dr. Rajaram Jaipuria ji upheld all his life have been carefully nurtured by his successors, by his son, grandchildren and other family members. And we all have assembled here to celebrate his idea of empowering the next generations through quality education. The second lecture, held in virtual mode on December 5, 2020, was delivered by Mr. Nitin Gadkari, Minister for Road Transport and Highways, Minister of Shipping and the MSME Government of India. Its topic was very appropriate for the country that was overcoming the pandemic, role of leadership in turbulent times. डॉक्टर राजाराम जयपुरिया जी के स्मृति में मैं अभिवादन करता हूं, जिन्होंने अपने जीवन में एक विजन के साथ उद्योग क्षेत्र में तो अच्छा काम किया ही, पर स्वाभाविक रूप से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है. The third lecture was delivered virtually by Swami Swarupananda, the global head of Chinmaya Mission, on March 5, 2022, and it provided significant insights on the topic Building a Strong and Resilient India through Visionary Leadership. This potential, as the Gita says, is in each one of us. If we are ready to discover that infinite potential in each one of us,
that is given in our books of knowledge, in our scriptures, and the method of developing our mind to be receptive to great discoveries and to be dynamic, to be able to perform in this world, that we bring about productivity. The fourth lecture was held in April 2023 and delivered by Padma Vibhushan Dr. Murli Manohar Joshi, former Minister for Human Resource Development and Science and Technology. The topic of the lecture was Building a Sustainable Future Through Education. Dr. Rajaram Jaipuria's interest in education, social welfare and philanthropy activities were phenomenal. I pay homage to that great Karmyogi concept which I have been propagating for last at least 30 years, that we must shift our whole understanding of universe and human existence from unnatural development to sustainable consumption. Beyond these memorial lectures, Seth Anandram Jaipuria Group is making a real difference in the field of education by conducting regular events, virtual sessions, conclaves and summits that feature distinguished luminaries from different fields. Renowned policymakers have shared their vision of India's future growth on our platforms. Social reformers have fervently expressed their views on changing the country at grassroots level. Famed sportspersons have inspired the young aspirants to pursue their dreams. Carrying forward this tradition of highlighting the issues pertinent to growth and sustainability, the fifth Dr. Rajaram Jaipuria Memorial Lecture is being delivered by the Honorable 14th President of India, Shri Ramnath Kovind Ji. The topic of the lecture is The Rise of India as Vishwaguru, Naya Yug, Nai Uchaiya. The topic underscores India's immense growth potential and its rise to the stature of a developed nation during the Amrit Kaal. It echoes the aspirations of 1.4 billion people to make India a global leader. Seth Anandram Jaipuria Group of Educational Institutions, always committed to nation building. Our mission is to deliver quality education for Viksit Bharat. Empower, enthuse, excel. It is now my pleasure to introduce Shri Shishir Jaipuria. Shri Shishir Jaipuria is the chairman of Seth Anandram Jaipuria Group of Educational Institutions. He was the chairman of FICCI Arise, the vertical of FICCI which takes care of the interest of independent schools. For his immense contribution to the education sector, he was conferred with a Lifetime Achievement Award by the Education World 2022-23. He is also the chairman and managing director of Guinea Filaments Limited. May we request Shri Shishir Jaipuria to come and deliver the welcome address. परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत वर्ष के पूर्व राष्ट्रपति, उपस्थित अतिथिगण, जयपुरिया परिवार के सदस्य एवं समूह में बैठे सभी लोग, अध्यापकगण, प्रिय छात्रों एवं मीडिया के सदस्य, मैं डॉक्टर राजाराम जयपुरिया मेमोरियल लेक्चर के अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से अपना आभार और अभिनंदन श्री रामनाथ कोविंद जी के प्रति व्यक्त करना चाहता हूं। कोविंद जी एक उत्कृष्ट राजनेता हैं। उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक देश की सेवा में समर्पित किए हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने
राष्ट्रीय विकास का नेतृत्व किया और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों की गहरी समझ प्रदर्शित की है। कोविंद जी गांधी जी की विचारधारा और उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के प्रबल समर्थक हैं। मुझे उनसे मिलने का कई बार अवसर मिला और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनके विनम्रता, सादगी और कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। कोविंद जी 5th डॉक्टर राजाराम मेमोरियल लेक्चर डिलीवर करने के हेतु मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। आज हम लेक्चर के विषय द राइज ऑफ इंडिया एज अ विश्व गुरु, नया युग नई ऊंचाइयों पर आपका ज्ञानपूर्वक और सारगर्भित विचारों को जानने के लिए इच्छुक हैं। मैं अपने पिता डॉक्टर राजाराम जयपुरिया को भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जो एक सफल उद्योगपति होने के अतिरिक्त एक विजनरी, एक प्रगतिशील एजुकेशनिस्ट और उदार फिलैंथ्रोपिस्ट थे। मैं अपनी माताजी सुनीति देवी जी को भी इस मौके पे नमन करता हूं। मेरे पिता का मानना था कि शिक्षा युवाओं को सशक्त बनाने का एक साधन है और उद्योग उनकी क्षमता को बढ़ाने का माध्यम है। वह भगवत गीता के संदेश को एक कर्मयोगी के रूप में कार्यान्वित करते थे। उनके बारे में गीता का एक श्लोक प्रासंगिक है जिसे मैं आप सबको साझा करना चाहूँगा। यद यद आचार्यते श्रेष्ठः तत्तत् देवोत्तरो जनः सायत् प्रमाणे कुरुतेः लोकस्तद अनुवर्तते। The shloka means whatever actions great persons perform, common people follow. Whatever standards they set, all the world pursues. My father set high standards with his exemplary work towards nation building. To commemorate his vision and life of my father, we started the memorial lecture in 2019. And today I can say with conviction that the stature of the lecture has risen with every passing year. Each year, the lecture is focused on a topic of national significance in view to educate the young minds, initiate discussions, and create a compelling narrative for national development. This year's topic, The Rise of India as Vish Guru, Naya Yug Nai Uchaiyan, is very relevant to the present context of India's strong trajectory as it's emerging on the international stage as a rising superpower and a potential to be a global leader. I believe that the term Vish Guru in the context of India is not new. There was a time in the past when our great nation reached supreme heights of spiritual wisdom, scientific knowledge, art, music, and literature. Our scriptures are among the oldest in the world. The Vedanta philosophy is one of the profoundest treatises advocating inner liberation and enlightenment. We have given to the world the beautiful language of Sanskrit, from which other languages have evolved. We pioneered mathematical concepts of the zero and decimal long before the Greeks, the Romans, Arabs, or the Chinese. We also were a Vish Guru in terms of economic dominance. According to the British economist Angus Maddison, India's total share in the world economy in 1000 AD was close to 28.9%. We were once a Sone ki Chudiya, one of the richest nations in the world. But relentless invasions from the 11th century onwards and the 200 years
of the British colonial rule took a lot away of our glory. Our country's independence movement marked the reformation of India's national identity. Revolutionaries, freedom fighters, and activists, all of them strive together the common goal of an independent India. During the 7 decades after freedom, our nation has undergone a massive change. Barack Obama, the former President of the United States, during his visit to India in 2000 said, and I quote, "India is not just emerging, India has already emerged. This economic miracle is driven by Indian innovation, Indian youth, and Indian democracy," unquote. Our country is presently at an inflection point. We are witnessing socio-economic development and a strong political will for making India a Viksit Bharat in the Amrit Kal. We are the fastest growing major economy in the world with a potential to become the 3rd largest by 2026 and a $30 trillion economy in the coming years and decades. Our middle class is on the rise and a lot of entrepreneurial talent is emerging from small towns and cities. India has the 3rd largest startup ecosystem in the world with more than 111 unicorns, and the number is increasing day by day. Our manufacturing sector is expanding and we are witnessing increasing capabilities of domestic production. India is also witnessing social empowerment through various initiatives. Today, people avail subsidies and financial benefits through the direct benefit transfer schemes. Millions of bank accounts have been opened to provide financial access to the marginalized sections. The Indian Stack, a digital infrastructure, has enabled seamless digital identity verification and payment solution to the masses. Girls and women are being empowered through initiatives towards inclusive education, subsidized cooking gas, and financial security. Today, we see political will, a vision to translate the country's immense potential into reality. In recent years, India has acquired a prominent place at the global stage. We have held the G20 presidency. The summit last year helped to bring about a consensus on several major issues such as inclusive economic growth, sustainable development, and climate change. Indian diaspora has consolidated the country's soft power. Today, Indians are at the helm of major multinationals and technological giants of the world. The International Day of Yoga is celebrated in over 190 countries, and India is emerging as an arbiter of peace to help resolve global conflicts. The rise of India as a wish guru has to be seen in the context of the global and national influences disrupting the world. We are living in an age of rapid technological transformation. Artificial intelligence is turning out to be a big disruptor in industries. The world is also grappling with climate crisis, which is profoundly affecting natural ecosystems and posing a real threat to the economic progress. At the same time, geopolitical conflicts such as the Russia-Ukraine war, the Israel-Gaza conflict, and the brewing tensions in South Asia Sea pose a threat to the international supply chain and economic and political stability across nations. I believe that India has the potential to successfully address these challenges and even turn some of them into opportunities for growth. Education will be the huge catalyst to empower Indian youth to drive the country's growth. The National Education Policy 2020
has laid a comprehensive roadmap for transformative reforms in the education sector. This had to be backed with adequate budgetary allocations to provide equitable access to quality learning, teachers training, technology integration, and skill development. Education has to be aligned with the rapidly changing needs of the industry. The focus should be on outcome-based learning and measurable results to ensure the students acquire the relevant skills and knowledge applicable to real-world scenarios. We have to build and sustain a culture of academic research and development. We must encourage and foster innovation to find solutions to some of the most intractable problems that we are facing today. At the same time, India has to retain the intellectual human capital. It has to emerge as a Vishguru. Skilled professionals leaving for better opportunities abroad result in the loss of talent. To address this, India must improve research facilities, offer attractive compensations, and create a supportive environment for innovation. The Amrit Kal is a golden period of India's rise as a Vishguru. This period will present new opportunities and pose challenges that will test India's resilience. To navigate these challenges, India must adopt a clear and comprehensive roadmap. We turn to our chief guest, Kovindji, to enlighten us as to what this roadmap may look like. We seek to be enlightened with his insights and become active stakeholders in our nation's development. जैसे कि मेरे पिता डॉक्टर राजाराम जी जयपुरिया कहते थे, भारत ने विश्व को ज्ञान और आध्यात्म का खजाना दिया है. भारत पूर्व में विश्वदाता रहा है. भविष्य में वह विश्व गुरु बनेगा. मुझे विश्वास है कि हम सब अब भारत के विश्व को अपना स्थान बनाने में और 140 करोड़ के जो जनता हमारी है उसको आकांक्षा को पूरी कर सकें. धन्यवाद और जय हिंद. Thank you so much, sir, for such inspiring words. We are deeply honored to have with us Shri Ramnath Kovindji, Honorable 14th President of India. During his 50 years of service to the nation, he has held several important positions in the judiciary, legislature, and the executive. He practiced law for 16 years in the Delhi High Court and the Supreme Court of India before entering politics. Kovindji joined the Bharatiya Janata Party in 1991 and was elected as a member of Rajya Sabha from the state of Uttar Pradesh in 1994. As a parliamentarian, he focused on education in rural areas by helping to establish schools in Uttar Pradesh and Uttarakhand. In 2015, he was appointed the governor of Bihar. Kovindji became the 14th President of India in 2017 and displayed exemplary leadership and vision towards national and global issues during his presidency. He has lately been heading an 8-member committee on One Nation, One Election. Shri Kovindji has been an astute statesman, an exemplary social reformer, and a visionary leader. We now request Shri Yash Jaipuria to join everyone on stage as we felicitate and present a token of gratitude to the chief guest.
Thank you, sir. We will now present a short film that captures the inspiring life of Sri Ram Nath Kovind ji. श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति। परौंख उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर देहात का ये छोटा सा गांव कहां जानता था कि इसी गांव की गोद में पला बढ़ा एक साधारण सा बालक फूस के घर से राष्ट्रपति भवन तक के यादगार सफर की कहानी लिखेगा। कानपुर का बीएनएसडी इंटर कॉलेज, यही रामनाथ का 9वीं क्लास में दाखिला कराया गया। बीकॉम के बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। साल 1978 जब रामनाथ कोविंद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का इम्तिहान पास कर इनरोल हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का फैसला किया। बाद में वो केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल भी बने और फिर 1980 से 1993 तक सुप्रीम कोर्ट की वकालत में मसरूफ रहे। उनकी कानूनी समझ, ईमानदार छवि और जमीनी जुड़ाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 1991 में घाटमपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाने का फैसला किया। साल 2015 श्री रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। अपने कार्यकाल के दौरान रामनाथ कोविंद ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। एक दिन पटना राज्य भवन में राज्यपाल श्री रामनाथ कोविंद के लिए दिल्ली से फोन आया। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार बनाए जाने की सूचना दी गई। श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की सर्वोच्च परंपरा और गरिमा का पूरी निष्ठा से निर्वहन किया। इसी दौरान राष्ट्रपति भवन कई भव्य राज्य समारोहों का गवाह भी बना, जिनकी यादें हमेशा ताजा रहेंगी। साल 2019 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण। अपने कार्यकाल में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने हाथों भारत के 500 विशिष्ट नागरिकों को उनके व्यक्तिगत गुणों के सम्मानार्थ पद्मश्री प्रदान किए। 66 गणमान्य नागरिकों को पद्म भूषण से नवाजा। 25 बेहद खास भारतीयों को पद्म विभूषण से अलंकृत किया। श्री प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से अलंकृत किया, तो वहीं श्री नानाजी देशमुख और श्री भूपेन हजारिका को भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति रहे जिनके कार्यकाल में 4 मुख्य न्यायाधीशों ने शपथ ली। अन्य देशों से भारत के संबंध को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की भूमिका हमेशा याद की जाएगी। उनके कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन ने अनेक राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी की, जिनमें भूटान नरेश और उनका परिवार, आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खास हैं। सेना के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने देश के अलग अलग हिस्सों में सेना के 3 अंगों का निरीक्षण किया और उनकी कार्यप्रणाली को करीब से जाना। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के बावजूद श्री रामनाथ कोविंद का जीवन बेहद अनुशासित और सादगी भरा रहा। जब भी उनसे मिलिए तो लगता है कि सादगी और विनम्रता खुद रूबरू है। अनुभवों को जानिए
तो महसूस होता है कि जैसे पूरा विश्वविद्यालय आपसे मुखातिब है। जमीनी संघर्ष और तजुर्बे में तपी शख्सियत ऐसी कि जैसे हमारे हताश मन को हौसला देते हुए वो कह रहे हों, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। Now it's time to hear from the Honorable Chief Guest. Sir, may we request you to share your insights on the theme, The Rise of India as Vishwaguru, Naya Yug, Nai Uchaiyan. Let us invite him for the lecture with a big round of applause. मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन श्री शिशिर जयपुरिया जी, श्री शाकिर जयपुरिया जी, इस सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की एक खासियत होती है। अभी मैं अपने बारे में भी कुछ देख रहा था, सुन रहा था, तो मैं शिशिर जी से पूछ रहा था कि भी ये खोज करके आप कहाँ से लाते हैं जो मुझे भी नहीं याद है, वो आज मुझे देखने में पता चला कि शायद मेरे जीवन के कुछ अंश इस प्रकार से भी गुजरे। देवी और सज्जनों, 5वें डॉक्टर राजाराम जयपुरिया मेमोरियल लेक्चर में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं जयपुरिया ग्रुप को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि डॉक्टर राजाराम जयपुरिया जी के नाम पर उनकी स्मृति में आपने जो व्याख्यान माला की श्रृंखला शुरू की है, उसमें मुझे आमंत्रित किया और मुझे भाग लेने का सुअवसर मिला। यद्यपि जयपुरिया परिवार से मेरा पुराना संपर्क रहा है, लेकिन नया संपर्क मेरा तब हुआ वर्ष 2018 में, जब मैं ऑफिशियल विजिट पर चित्रकूट गया था। और चित्रकूट नानाजी देशमुख के निमंत्रण पर गया था। उसके साथ ही जिसका उल्लेख भी यहाँ पर हुआ, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, रामायण म्यूजियम कहें, रामायण गैलरी कहें, रामायण पर आधारित पूरा जो एक चित्रण किया गया है, ऐसा चित्रण, हूबहू चित्रण, उसको देखने के पश्चात आपको लगता है कि शायद हम साक्षात उन सभी जो कलाकार हैं, उसके आर्टिस्ट हैं, या जो उसमें जिनकी भूमिका रही है, उन सबको हम साक्षात उनसे मिल रहे हैं। एक ऐसा मुझे अनुभव हुआ। वहाँ पर शिशिर जी भी थे। वो मेरा पहला, जिसको मैं कहता हूँ, यद्यपि मैं जिस नगर से आता हूँ, कानपुर से, वहाँ से भी जयपुरिया परिवार का बहुत पुराना संबंध है। विद्यालय हैं, संस्थान हैं। मुझे इनवाइट भी किया गया था जब मैं राष्ट्रपति भवन में था। किसी कारण से मैं जा नहीं सका, लेकिन इस परिवार की एक विशेषता ये कि ये परिवार लक्ष्मी और सरस्वती के संगम का एक अनुपम उदाहरण है। ये कहा जा सकता है कि जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती का संगम होता है,
वहाँ संस्कृति भी फलती और फूलती है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि ये स्मृति व्याख्यान नया युग नई ऊंचाइयां जैसे राष्ट्र केंद्रित विषय पर आयोजित किया जा रहा है तथा भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने की दिशा में मार्ग संधान करना इस आयोजन का लक्ष्य। प्राय मैंने देखा है कि जो उद्योगपति होते हैं, धनपति होते हैं, साधन संपन्न परिवार होते हैं, उनकी सोच अधिकतर अपने विकास पर रहती है, सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ फोकस्ड। और जो उनका व्यापार होता है या जो व्यापार का समूह होता है, उन सबको केंद्रित करना, उन सबके बीच में इंटरेक्शन करना, हमारा व्यापार कैसे आगे बढ़े, इस पर फोकस करते हैं। बहुत कम परिवार हैं जिनका ध्यान उद्योग अपने व्यापार से हट करके एक राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित होता है, बहुत कम है। मैं तो समझता हूं कि उस दिशा में सोचना भी जो है वो बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र निर्माण अर्थात गिव बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी से ही हमें मिला, जो आज हम हैं वो सोसाइटी के कारण ही हैं, उनके सहयोग के कारण हैं, और उनको हम क्या दे सकते हैं ये एक छोटे स्तर पे हो सकता है, लेकिन जब उसको हम राष्ट्र निर्माण की भूमिका में ले आते हैं तो सही मायने में हम एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका में आ जाते हैं। और उसकी मैं जयपुरिया परिवार की जितनी भी सराहना करूं वो बहुत कम है। देवी और सज्जनों, नव युग का निर्माण और उन्नति के नए शिखरों तक पहुंचना विकसित भारत के निर्माण के हमारे राष्ट्रीय संकल्प से जुड़ा हुआ है। हमारा देश अमृतकाल के आरंभिक दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2047 तक, यानी स्वाधीनता की शताब्दी के वर्ष तक, भारत को विभिन्न आयामों पर विश्व के शीर्ष राष्ट्रों में स्थापित करना हम सबका सामूहिक अभियान है, जिसे मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है युवा पीढ़ी की, और मुझे विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी भी उस संकल्प को आगे बढ़ाएगी। देवियों और सज्जनों, नव युग के निर्माण का संकल्प सहज रूप से पिछले युगों की हमारी विकास यात्रा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि हमने क्या पाया अभी तक, और उसके आधार पर हम अपना आकलन कर सकते हैं कि हम जो हमारा लक्ष्य है उसको हासिल कर सकते हैं या नहीं। इतिहास के प्रवाह में हमारे देश ने स्वर्ण युग भी देखे हैं और पराधीनता का बोझ भी उठाया। हिंदी के महान कवि और नाटककार जयशंकर प्रसाद जी की गणना भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के प्रकांड विद्वानों में की जाती है। उनका साहित्य हमारी संस्कृति और इतिहास की आधारशिला पर रचा गया। उनकी एक कविता में एक पंक्ति है जिसका मैं आप सबके साथ उल्लेख करते हुए साझा करना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि जगे हम लगे जगाने विश्व। जब तक हम नहीं जगेंगे तब तक हम विश्व की कैसे चिंता कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। ये जो प्रकाश है वो भारत के कारण ही विश्व में फैला। उस प्रकाश की जो लौ है उसकी हमें गति धीमी नहीं करनी है, बल्कि उसमें हम कितना योगदान कर सकते हैं वो हम सब पर निर्भर करता है। इस पंक्ति का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले हम भारतवासियों में सभ्यता का विकास हुआ,
तथा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई। इस तरह जागृत होने के बाद हम भारतवासियों ने पूरे विश्व को जागृत करने का अभियान शुरू किया। यहाँ पर मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगा आध्यात्मिक चेतना की जागृति के बारे में। भारत जो था वो था, लेकिन भारत के सांस्कृतिक चेतना का जो अलग जगाया है वह स्वामी विवेकानंद जी ने जगाया। वो जब शिकागो गए थे लगभग 100 वर्ष पूर्व, वहाँ से लोगों को पता लगा, विश्व के लोगों को पता लगा है कि इंडिया इज ए कंट्री विद डिफरेंस, अर्थात कि वह मैटेरियलिज्म पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि मैटेरियलिज्म से आगे निकल करके हम जो है भौतिकवाद से निकल करके हम अध्यात्मवाद पर भी जाना चाहते हैं। इस पंक्ति में निराला जी ने भारत के विश्व गुरु होने के साथ साथ समस्त विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने की वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी अभिव्यक्ति की है। भारत विश्व गुरु था और विश्व बंधु भी। देवियों और सज्जनों, सही मायने में विश्व गुरु उस देश को माना जाता है जिसे अन्य देश अनुकरणीय माने तथा मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त करें। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं कुछ उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगा। कुछ एक आज जिसको हम देखते हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में, वो दुनिया में कहीं नहीं है, मतलब उस स्केल तक। दुनिया के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में लगभग 46% भारत में होते हैं। 46%, अर्थात 50% से थोड़ा सा कम हम कह सकते हैं कि मतलब एक बहुत बड़े स्केल पर। विश्व के सभी विकसित देश हमारी इस उपलब्धि से आश्चर्यचकित हैं। मोबाइल का चलन, यदि एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5 अडल्ट हैं तो 5 के पास होंगे। 1-2 मोबाइल एक्स्ट्रा होंगे, वो छोटे बच्चों के लिए। व्हीकल्स, यदि जो अडल्ट हैं, हर घर में अडल्ट के पास अपनी गाड़ी होगी, 1 नहीं 2-2 3-3 होंगी। ये एक बहुत सामान्य सी बात हो गई, खास करके हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें यही हालत है। और एक हमारी उसकी एक चिन्ह भी बन गया हमारी प्रॉस्पेरिटी का, हमारी आइडेंटिटी का। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारने वाला पहला देश बना है। ये मैं केवल दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा हूं, उसमें पहले हम बन। चंद्रमा पर तो बहुत अमेरिका, चाइना, रशिया, इन सभी लोगों ने, आगे फ्रांस ने, उन्होंने अपनी लैंडिंग की थी। लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव की एक विशेषता है, वहाँ कहते हैं कि वो हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए किसी भी कंट्री ने जो है अटेम्प्ट ही नहीं किया। इंडिया ने अटेम्प्ट किया एंड फॉर्चुनेटली वी सक्सीडेड। साथ ही बहुत कम खर्च करके अत्यंत जटिल अंतरिक्ष कार्यक्रमों को अंजाम देने की भारत की सफलता की सराहना आज पूरी दुनिया कर रही है। इसके अतिरिक्त हमने मंगल ग्रह की भी परिक्रमा की और हाल ही में हमने सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला आदित्य L1 स्थापित की है। आने वाले वर्षों में हम अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 3 लॉन्च करने की उम्मीद कर रहे हैं। और ये केवल इसकी जो सीमा है इन गतिविधियों की, स्पेस टेक्नोलॉजी हमने केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं रखा है।
इस टेक्नोलॉजी का लाभ पूरे विश्व को मिले, एक हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री जो हैं वो हमारे जो पैड है, लॉन्चिंग पैड, वो इसरो हो या दूसरे भी हों, वहाँ पर वो कम खर्चे में आकर के अपने जो हैं यान वहाँ से उसको ऊपर ले जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और आज सचमुच में विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है। हाल ही में आयोजित आम चुनाव हुए, उसमें रजिस्टर्ड वोटर की संख्या लगभग 97 करोड़ थी। भारत के चुनाव आयोग से अनेक अन्य देशों के संस्थान प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और मैं कह सकता हूं कि मैं जितनी अपनी ऑफिशियल विजिट्स में था, तो जब मैं बात करता था अपने देश की जनसंख्या के बारे में, 135 कहिए, 140, अभी तो 145 के आंकड़े आ रहे हैं धीरे धीरे, तो 140 को हमने एक बनाया था। तो 140 की जब हम बात करते थे तो वो कहते थे कि साहब आप पे इनके इलेक्शन को, यू से दैट यू आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, आप हमें ये बता हाउ डू यू मैनेज द इलेक्शंस। एक तो इतनी बड़ी जनसंख्या, अब उन जनसंख्या में आप मान करके चलिए एक 90 करोड़ के रजिस्टर्ड वोटर हों, कितना भी वोटिंग करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, अगर 50% भी कर दें, 60% भी कर दें, तो रफली आपका 50 तो हो ही जाता है, 50 करोड़। अब 50 करोड़ को मैनेज करना, एक दिन में मैनेज करना, विशेष करके हमारा एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक इलेक्शन का फेज, एक इलेक्शन, लोकसभा, इट इज़ लोकसभा, तो उन सबको मैनेज करना अपने आप में वो कहते बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये जनसंख्या सुनकर के और रजिस्टर्ड वोटर की संख्या को सुनकर के ही इतने अचंभित हो जाते थे कि साहब कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं। आज भारत विश्व में सबसे तेज गति से विकास कर रही बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेज। कोरोना का कार्यकाल हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और सबका अपना अपना अनुभव था। किसी भी देश की इकॉनमी ने जहां पर खड़े थे कोरोना के दौरान उससे आगे नहीं बढ़े बल्कि कम हुए। भारत ही एक ऐसा देश था जिसने कोरोना महामारी का मुकाबला भी किया और हमारी इकॉनमी में उछाल भी आया। आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि की दृष्टि से भारत प्राचीन काल से ही विश्व समुदाय के शीर्ष पर आसीन रहा था। हमारे देश में इतनी संपत्ति, इतना वैभव था कि आक्रमणकारियों द्वारा सदियों के दमन और शोषण के बावजूद 19वीं सदी के आरंभ में भारत का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/4 हिस्सा था। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतने आक्रमणकारी आए, वो यहाँ से लूट करके ले गए, लेकिन इसके बावजूद हमारी आर्थिक संपन्नता में कमी नहीं आई। अर्थात यदि सब कुछ लूटा ना होता तो शायद आज हम ऑलरेडी वी वुड हैव रीच्ड आवर स्केल। उस समय मैं कह सकता हूं कि शायद भारत ही एक ऐसा देश होता जो कि साधन संपन्नता में, इकॉनमी में टॉप पर होता। लूटने के बाद में ये स्थिति है। और सबसे आखिरी जो लुटेरा था, हम लुटेरा कहेंगे, और जो अंग्रेज थे हैं, उनको भी आप देखिए, यहाँ पर वो राज भी करते हैं और लूट करके भी ले जाते हैं। उसके बावजूद फिर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हैं। शिशिर जी उल्लेख कर रहे थे सोने की चिड़िया का, बात सही है। ये बच्चे भी कभी कभी सोचते हैं कि ये क्यों सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। आखिर चिड़िया तो सोने की नहीं होती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका उपयोग जो है, चिड़िया उड़ सकती है, तो यहाँ हमारा धन संपत्ति और वैभव जो है
उड़ कर के या उड़ा करके जो है वो बाहर गया, इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। आज भी सोने की हमारे यहाँ कमी नहीं है और अच्छा है। अब हम फिर से देश की अर्थव्यवस्था को विस्तार और शक्ति देने की दिशा में नए संकल्प तथा बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत डिटेल्स में, माइन्यूट डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, ये अदरवाइज ये विषय ऐसा है, जो विषय आपने शिशिर जी रखा है उसके लिए तो शायद एक दिन भी कम पड़ेगा बात करते करते। देवी और सज्जनों, हमारी समृद्ध परंपरा की नींव पर भविष्य के आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अपनी परंपरा को भी गहराई से समझना होगा। इसके लिए अनुसंधान करना होगा। प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का वर्णन करते समय प्रायः आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत का उल्लेख किया जाता है। भारत ने शून्य सहित अर्थात जीरो, शून्य सहित आधुनिक अंक प्रदान किए तथा दशमलव पद्धति विकसित की, डेसिमल सिस्टम, यह भी उल्लेख किया जाता है। तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, बल्लभी जैसे महान विश्वविद्यालयों का भी उल्लेख किया जाता है। कहा जाता है, क्योंकि मैं बिहार में था लगभग 2 वर्ष तक, तो मुझे नालंदा देखने का कई बार अवसर मिला। कहा जाता है कि वहाँ पर एट वन टाइम 10,000 स्टूडेंट्स used to stay in hostel and used to study in that university। और वो 10,000 इंडियंस कम थे, बाहरी ज़्यादा थे, और विशेष करके जो दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया उन कंट्रीज़ के जो थे वो स्टूडेंट्स यहाँ पर थे। और इसीलिए वो जब यहाँ से जाते थे तो बुद्धिज़्म का जो प्रचार हुआ ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में हुआ। लेकिन एक उसकी आज भी खंडहर भी, यदि आप देखेंगे, आपको जिसको जाने का मौका मिला हो, नहीं जा पाए हो तो ज़रूर जाइए। वो खंडहर से आपको पता लगेगा कि वाकई में उस समय, ये तो किसी मैं सिरफिरा कहता हूँ कि जिसने की उनकी लाइब्रेरी में, उसमें शायद मे बी अराउंड 20,000 बुक्स, वो पुरानी बुक्स थी, वो किसी ने आग लगा दी थी, वो जल गई थी। मतलब एक जो हमारा ज्ञान की संपदा है, ज्ञान स्टोर ऑफ नॉलेज, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम खड़े हुए। सचमुच हमें अपने देश की समृद्ध ज्ञान परंपरा, जो आज के लिए उपयोगी क्या सामग्री हो सकती है, उसे भी अपनाना होगा। और मैं एक आपके सामने उदाहरण साझा करना चाहूँगा। आज से लगभग 900 वर्ष पहले लिखी गई पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। उस पुस्तक के अनुसार आज से लगभग 1200 वर्ष पहले कश्मीर में नदियों की धारा बदलने के कार्य में सुइया नामक एक वैज्ञानिक सिद्धहस्त थे। He had got the expertise of changing the course of our rivers। उन्होंने कश्मीर क्षेत्र के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए नदियों के बहाव का रास्ता बदल दिया था। कविता की शैली में लिखा गया है कि जैसे सपेरा सांप को नचाता है, वैसे ही सुइया, जो वैज्ञानिक सुइया थे, वो नदियों को नचाते थे। श्रीनगर में स्थित आज भी आदि शंकराचार्य के मंदिर से झेलम नदी का जो स्वरूप दिखाई देता है, उससे ये बात स्पष्ट होती है। आवश्यकता है कि वैज्ञानिक सुइया की कार्य पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के हर संभव स्रोत का अन्वेषण किया जाए, खोज की जाए,
हो सकता है कि ऐसी सामग्री प्राप्त हो जाए, ये भी हो सकता है कि ये जानकारी ना मिले, परंतु हमारे देश के हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों को भारत में अपनाई गई प्राचीन वैज्ञानिक पद्धतियों का पता तो लगाना ही होगा। देवी और सज्जनों, इसी संदर्भ में मैं एक और उल्लेख करना चाहूँगा। क्योंकि वर्तमान में मे बी ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जिसको हम कहते हैं, बाढ़ का प्रकोप आया हुआ पूरे देश में, बाहर भी है, इसलिए ये 2-3 संदर्भ मैंने आपसे के साथ साझा करना उचित समझा। इस संदर्भ में मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत में वर्ष 1847 में एक कॉलेज स्थापित किया गया था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये विश्व का सबसे पुराना कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। वही कॉलेज आज वर्तमान स्वरूप में IIT रुड़की बन गया। बहुत पुराना कॉलेज है, ओल्डेस्ट कॉलेज इन इंडिया। दक्षिण एशिया के अनेक ऐतिहासिक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का श्रेय थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग को ही दिया जाता है। हम सबको ये जानना चाहिए कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्राचीन काल में ही हमारे देश में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर विज्ञान और स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। ऐसी उपलब्धियों के पीछे निहित पद्धतियों की जानकारी आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक हो सकती हैं और उसको जो हमारी विश्व गुरु की कल्पना है उसमें बहुत अपना योगदान दे सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ दशकों से पश्चिमी देशों को, वेस्टर्न कंट्रीज, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिखर पर माना जाता है, ऐसी अवधारणा एक बनी हुई है। लेकिन अगर हम करीब से देखेंगे तो अमेरिका जैसे देश के भी ग्रेटेस्ट थिंकर्स, जिनमें शामिल हैं जॉन एडम्स, वाल्ट व्हाइटमैन और हेनरी डेविड थोरू, भारतीय विचारों से, भारतीय वैज्ञानिक परंपराओं से बहुत प्रभावित थे। और जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपनी स्पीच के द्वारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो उद्घोष किया था, उसके बाद तो भारतीय विचारों के प्रभाव का एक नया दौर शुरू हुआ। ये हमारे सुदृढ़ विचारों का ही प्रभाव रहा है कि मशहूर संगीत बैंड बीटल्स से लेकर विख्यात उद्यमी स्टीव जॉब्स तक जब जीवन के शाश्वत सवालों के जवाब खोजने के लिए निकले तो उनकी खोज उन्हें भारत की ओर ले आई। ये कुछ ऐसी चीज़ों का मैंने उल्लेख किया है जो डे टू डे डिस्कशन में चीज़ें नहीं आ पाती। देवी और सज्जनों, हमारा संविधान जिन ऊंचे आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा दिखाता है, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारा देश निरंतर आगे भी बढ़ रहा है। राष्ट्रपति के रूप में मेरा निर्वाचन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का ही एक उदाहरण है। अदरवाइज आपने देखा मेरी जीवन कहानी, एक छोटा सा गांव, मड फूस क्या एक झोपड़ी, उसमें रहने वाला परिवार कहाँ से कहाँ निकल करके गया। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के संवैधानिक नैतिकता के आदर्शों के अनुरूप, मैं नैतिकता की बात करता हूँ, आदर्शों के अनुरूप भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कि आज केंद्र सरकार निरंतर नए अभियान चला रही है। समता, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विकास के सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के हितों और कल्याण को सर्वोच्च
प्राथमिकता दी जा रही। महिला सशक्तिकरण ये एक ऐसा विषय है जो बहुत बरसों से पेंडिंग था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पास हुआ है संसद में, वो एक प्रगतिशील कानून जो कि विश्व में किसी अन्य देश में नहीं है। आज जिसकी हम अमेरिका की बात करते हैं, आप जरा थोड़ा सा तुलना करिएगा कभी। अमेरिका में कहते हैं कि वो 200 साल से उनकी डेमोक्रेसी चल रही है, अच्छी बात है। हमारे यहाँ 75-76 साल हुए, लेकिन जब उनके यहाँ पर जब संविधान का निर्माण हुआ तो उन्होंने हमारे वीमेन हेड अर्थात हमारी बहनों को वोट देने का अधिकार उनसे वंचित रखा। ये अमेरिका की हालत है। जबकि हमारे यहाँ पर भारत में द डे व्हेन वी अडॉप्टेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी रिकॉग्नाइज देयर राइट। हमारी जो बहनें हैं, हमारी डॉटर्स हैं, उनके अधिकारों की हमने सुरक्षा की और उस पहले दिन से जो है उनको वोट देने का अधिकार दिया। ये एक मैं तुलना कर रहा हूँ, और इसको जिन देशों को पता लगता है तो वो हमारी सराहना करते हैं भारत की। यस, दे रिकॉग्नाइज इंडिया बीइंग द फर्स्ट कंट्री कि जिसने वोटिंग राइट्स जो है वो हमारी महिलाओं को दिया सबसे पहले। जिसकी शिशिर जी आप बात कर रहे थे, सही माने में बातें बहुत हैं, और मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ आपने समय भी हमें कम दिया और इसको या पूरे दिन भर कर रखना चाहिए था। ये अभी देखिए, मतलब बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जब उनको सुनते हैं हम, वो तो सब राजनीति और वो चलता रहता है, पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट के दिन भर। जब तक पार्लियामेंट चलेगा तब तक लगता है कि सब सारी जो सत्ता और जो इश्यूज़ हैं वो केवल पार्लियामेंट तक ही सीमित, और कहीं नहीं है। लेकिन एक अभी, और वो अभी भी चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे, मुझे लगता है 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल, ये जब शुरू हुआ था तो लोग कल्पना कर रहे थे कि भाई 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। सब लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने निकल गए। और इसीलिए आपने देखा होगा यूक्रेन में हमारे बच्चे फंसे हुए थे, इसी उम्मीद में कि साहब 2 महीने बाद तो समाप्त हो जाएगा। जब देखा ये 6 महीने, 8 महीने गुजर गए और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि जिसमें कि वहाँ पर शायद जीना मुश्किल था, तब ये जो बहुत यूक्रेन से हमारे बच्चों के, हमारे जो पेरेंट्स थे यहाँ पर इंडिया में, वो लोग इतने उनका कंसर्न जो था उसको गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया। और ये मैं उदाहरण जानबूझ के दे रहा हूँ। लगभग 21-22 हज़ार हमारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर। उस समय मैं था वहाँ राष्ट्रपति भवन में, तो मुझे बताया गया, मैंने एक सवाल पूछा कि हमें ये बताइए, हमारे बच्चे जाते तो हैं, सभी दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए और दूसरे, तो मैंने कहा यूक्रेन में क्यों ज़्यादा जाता है, ज़्यादा क्यों जाते? कहलें साहब वहाँ एजुकेशन सस्ती है, मेडिकल एजुकेशन सस्ती है। बात समझ में आ गई। अब सवाल ये है, सस्ती होने के कारण हमारे बच्चे तो वहाँ फंस गए। अब हमें बताइए, अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे? सरकार क्या करे? सारी जिम्मेदारी सरकार पर आएगी। वैसे आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन सब लोग सरकार को ही कोसते। भेजा तो भाई पेरेंट्स ने भेजा था, जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है, लेकिन सरकार की आती। हमारी सरकार ने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। दे प्लेड अ रोल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप, और ये कहा कि भाई दोनों कंट्रीज के साथ में बात करके, रसिया को भी, यूक्रेन को भी, कि भाई 24 घंटे के लिए जो है आप युद्ध विराम कर दीजिए। आप समझ सकते हैं दोनों बड़े बड़े कंट्री,
रसिया तो हमसे वैसे ही बड़ा है। क्या अगर कोई दूसरा कंट्री इंटरवीन करता तो वो मान जाते? नहीं मानते। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की, रसिया से भी बात की, यूक्रेन से भी बात की, और थैंक गॉड दोनों सहमत हो गए। 24 घंटे के लिए युद्ध विराम हुआ और हमारे स्टूडेंट जो आसपास बॉर्डर के यूक्रेन और रसिया के आसपास, यूक्रेन में फंसे थे तो यूक्रेन के आसपास जितने भी कंट्रीज़ थे, 5-6 कंट्रीज़, उनमें जो हमारे मिशंस थे अर्थात एम्बेसीज वगैरह जो थी, उन सबको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप बॉर्डर पर, यूक्रेन के बॉर्डर पर आप पहुंचिए, अपने पूरे स्टाफ के साथ पहुंचिए और केवल तिरंगा झंडा जो है आप लिए रहिए एज ए टोकन फॉर रिकॉग्निशन कि भाई ये इंडियन यहाँ है। तो हमारे 4-5 कंट्रीज़ के जो मिशंस थे वो सभी बॉर्डर्स पर पहुँच गए और सभी के हाथ में झंडा। और स्टूडेंट्स को ये कहा गया कि आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आप अपने वहाँ से बॉर्डर को देखिए। यूक्रेन के सेंटर में भी तो आप देखिए आपका बॉर्डर सबसे नज़दीक कहाँ है, जहाँ पर नज़दीक है वहाँ पर पहुँचिए और यू विल गेट द हेल्प। और यही हुआ। वो हमारे स्टाफ जो मिशंस के, एम्बेसीज के स्टाफ थे, वो इंक्लूडिंग एम्बेसडर, सब लोग वहाँ पर मिले और वो जो बच्चे जो थे वो बस हिंदुस्तान का हमारा तिरंगा झंडा और भारत माता की जय, ये भारत माता की जय जो थी और तिरंगा जो था, उसने मैं कह सकता हूँ कि उसको क्रेडिट जाना चाहिए कि वो हमारे 22,000 बच्चे निकल आए, सेफ निकल आए। और अमेरिका के भी वहाँ पर यूक्रेन में बच्चे थे, पाकिस्तान के भी बच्चे थे, यहाँ तक कि चाइना के भी बच्चे थे। और उनके जो हेड्स थे, प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, उन लोगों को कहा गया कि भाई व्हाट इंडिया इज़ डूइंग यू आल्सो फॉलो इंडिया। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स को कहा, आपने हमसे पूछ के नहीं भेजा था, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये जो है बच्चे बच गए तो आपकी किस्मत, नहीं बचे तो हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं इसका उल्लेख जानबूझ करके किया। दिस इज द ग्लोबल लीडरशिप एंड इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्लोबल लीडर इवन एज ऑन टुडे। अभी लेकिन ग्लोबल लीडरशिप या विश्व गुरु कभी कभी कहते हैं, भारत क्या विश्व एक अगर गवर्नमेंट, पहले कभी कभी कंसेप्ट चला करते थे कि साहब वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट होगी, दुनिया की एक ताकत होगी, एक सरकार होगी। तो मैंने कहा भाई कभी कल्पना मत करिए कि इंडिया अगर कहीं बन गया हेड ऑफ द स्टेट्स तो आप मानोगे कि यहाँ इंडिया में उनकी वर्ल्ड की कैपिटल होगी। ऐसा मत सोचिएगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। कंट्रीज़ ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जितना हमारा रिकॉग्निशन है ग्लोबल लीडरशिप का, वो रिकॉग्निशन ही आपको ऊपर तक पहुँचाएगा। एक मैं और बात का उल्लेख, वो शायद शिशिर जी आपके उससे थोड़ा सा आपने उल्लेख किया था, ये उदाहरण देने से सही मायने में हम वेयर डू वी स्टैंड, धरातल पर हम कहाँ खड़े उसका पता लगता है। एक में मेरी विजिट हुई थी क्यूबा की। क्यूबा सब लोग जानते हैं कम्युनिस्ट कंट्री और अमेरिका का घोर दुश्मन, जैसे चाइना है उसी तरीके से क्यूबा, छोटा है कंट्री लेकिन। वहाँ पर हम गए तो बातचीत, उन्होंने जो एक बैंक्वेट होता है, ट्रेडिशनल बैंक्वेट होते हैं, वो जब होस्ट किया उन्होंने, राष्ट्रपति जी ने लंच किया, उसमें हमारी सुषमा स्वराज भी थी एज फॉरेन मिनिस्टर। तो ठीक जो हमारा 21 जून होता है ना योगा का डे, उसके ठीक दूसरे दिन जो है 21 जून को मैं था सूरीनाम में, सूरीनाम से 22 जून को गया क्यूबा में, और नज़दीक है। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने लंच होस्ट किया, सुबह जो बायलैटरल टॉक थी वो हो गई। उसके बाद में जब लंच पर बैठे तो हमने ऐसे जिक्र किया कि एक्सलेंसी यस्टरडे द होल वर्ल्ड सेलिब्रेटेड वर्ल्ड योगा डे। उसका रिस्पांस ये था, यस एक्सलेंसी वी आल्सो सेलिब्रेटेड। मुझे ज़रा सरप्राइज ये हुआ कि बीइंग ए कम्युनिस्ट कंट्री, इनका क्या फेथ हो सकता है
योगा में। तो मैंने कहा एक्सलेंसी विल यू प्लीज इनलाइटन अस, हाउ डिड यू सेलिब्रेट इट। तो वो साहब लंच टेबल से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने अपना शुरू कर दिया लाइक दिस, इस तरीके से। सॉरी, ये उन्होंने शुरू किया। छोड़। अब मैंने ये पूछा, सुषमा स्वराज जी थी तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी इनसे ये पूछिए कि इनकी मैडम भी आप उन्होंने पार्टिसिपेट किया था या कि देशवासियों की बात कर रहे हैं, क्यूबा के लोगों ने किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं एक्सलेंसी, यस वी आल्सो सेलिब्रेटेड योगा डे। और उनकी जो मैडम थी फर्स्ट लेडी, उनका एक ऑब्जर्वेशन आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा कि एक्सलेंसी वी रिकॉग्नाइज दैट योगा is a gift, unique gift that India has given to the entire world. आज योगा के महत्व को शायद हम इंडियंस इतना ना समझ पा रहे हो। और फिर जब उनसे पूछा हमने कहा व्हाट आर द बेनिफिट्स, कैन यू एक्सप्लेन टू अस, वो सब बेनिफिट्स बताए। फिर देन वी अरेंज, उनको हमने कहा कि एक्सलेंसी we would like to do a little favor if you agree. तो हमने कहा कि we want to depute our Indian yoga teachers, trained yoga teachers, and he readily agreed. और सुषमा जी को कहा, सुषमा जी ने कहा कि within a week you will be having one yoga trained teacher, and he was quite happy. अब ये मैं योगा की बात कर रहा हूँ कि जिसको शायद हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन उसको विदेशों में कितना जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, मैंने इसलिए उसका उल्लेख किया। देवी और सज्जनों, आज कुछ देशों के साथ हमारा आयात निर्यात, मैं एक जो विश्व गुरु के बारे में जो एक कल्पना की जा रही है उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, इसलिए मैं सभी को टच करना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। आज कुछ देशों के साथ हमारा आयात निर्यात भारतीय मुद्रा में होने लगा, बहुत बड़ी बात है। आज जब हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, आज के पहले मैं कहूँ तो आपको केवल दो ही करेंसी मिलती थी, डॉलर और पाउंड। डॉलर और पाउंड है आपके पास तो दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन और इसके अलावा उसकी मान्यता नहीं। लेकिन आज की स्थिति बदल गई है। आज की स्थिति में हमारा रुपी जो है वो भी, उसकी भी स्वीकार्यता जो है बढ़ी है। कई कंट्रीज़ में जो है वो, अगर आपके पास इंडियंस के पास रुपी है, देन यू कैन गो एंड एंजॉय शॉपिंग आल्सो, जो भी करना है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो हो सकता है, इसका एक बहुत वो कह सकते हैं कि भाई लेकिन एक बहुत जिसको कहते हैं कि हाई लेवल पे हम नहीं कहना चाहते, लेकिन सही मायने में मुझे लगता है कि आगे भविष्य में जो है वो डॉलर, पाउंड और उसके बाद में हमारी थर्ड करेंसी जो है दैट विल बी इंडियन रुपी। आज के दिन भी जो है वो लगभग हमारा 10 देशों में उसकी मान्यता है। अब ये 10 देशों से अगर मान लीजिए 20 हो गए, 30 हो गए, तो आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार जिसका नाम भी इन्होंने दिया है, यूपीआई के द्वारा लेन देन को श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों में स्वीकार्यता मिली है। इसी प्रकार का समझौता हम यूएई के साथ भी हो गया, गल्फ कंट्रीज़ में भी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी एक दिन दुनिया भर में भारतीय रुपए को भी डॉलर और पाउंड की तरह स्वीकार्यता मिल जाएगी। इस पर हम सबको गर्व का अनुभव होना चाहिए। देवी और सज्जनों, कोरोना महामारी की भयावह स्थिति के बीच भी भारत ने अपनी सामर्थ्य और क्षमता को पहचानते हुए मार्च 2020 में कोरोना निरोधी वैक्सीन अपने देश में ही निर्माण करने का एक साहसिक निर्णय लिया। एंड विद इन ए स्पैन ऑफ 2 months from the date of our decision,
और मात्र 2 माह के बाद ही मई 2020 में देशवासियों को टीका लगवाना प्रारंभ किया। हमने अपने नागरिकों का टीकाकरण तो किया ही, साथ ही साथ लगभग 100 से ज़्यादा देशों को भी टीके हमने उपलब्ध कराए, कहीं फ्री कराए और कहीं पर कास्ट बेसिस पर। एक कंट्री था सेंट विंसेंट, मुझे याद है, छोटा कंट्री, लगभग उसकी 3-4 लाख पॉपुलेशन। जब हम गए 2 दिन की विजिट पर थी, ऑफिशियल विजिट, जितने उनके कार्यक्रम हुए, 4 से 5 कार्यक्रम हुए, उन सभी में उनके प्राइम मिनिस्टर बार बार जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते रहे। उनका एक ही कहना था कि साहब अगर प्रधानमंत्री मोदी ने हमें देश को हमारी जो है इतने वैक्सीन हमें ना उपलब्ध कराए होते तो हमारी आधी पॉपुलेशन जो है ख़त्म हो गई होती। ये उनका जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, दैट रिफ्लेक्टेड कि वेयर डू वी स्टैंड इन द ग्लोबल सीनेरियो। मैं इन सभी उदाहरणों को विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में हमारे बढ़ते हुए कदमों के प्रमाण के रूप में मानता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि और विरासत और विकास तथा परंपरा और आधुनिकता के बीच प्रभावी संतुलन बनाए रखते हुए हमारा देश समग्र विकास के अभूतपूर्व शिखरों तक एक दिन जरूर पहुँचेगा और विश्व मंच पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। आप उसे कह सकते हैं विश्व गुरु, आप उसको कह सकते हैं ग्लोबल लीडर, कुछ भी कहना चाहें, बट वी विल हैव ए प्लेस टू बी रिकॉन्ड विद एट द ग्लोबल लेवल। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। शिशिर जी, एक हमारे यहाँ कहावत है कि कार्यक्रम हो या कुछ भी हो, पानी जब फैल जाता है ना तो अच्छा होता है। मेरी आपके ग्रुप के लिए, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर राजाराम जी की स्मृति में जो आपने कार्य शुरू किया है उसमें मेरी सहभागिता हुई, उसके लिए जो मुझे आपने अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, sir, for your enlightening lecture and for sharing your wisdom and experiences with us. Your words have truly inspired us and will stay with us for a long time. As we approach the conclusion of this memorable ceremony, I invite Shri Saket Jaipuria to deliver the vote of thanks and express our sincere gratitude to everyone who contributed in making this event a huge success. Good afternoon, everyone. I extend reverential greetings to Honorable 14th President of India, Shri Ramnath Kovind ji, for his insights today at the 5th Dr. Rajaram Memorial Lecture. The Memorial Lecture series was instituted by my father, Shri Shishir Jaipuria, in 2019, as you all have seen, and I'm very grateful for the same to him as well. We are extremely pleased and thankful for the presence of large number of Jaipuria family members, friends, students, and the organizing teams for this lecture. The topic of today's lecture, The Rise of India as a Vishwa Guru, is an interesting one. India is the largest democracy in the world with a population of 1.4 billion people. And there are many huge positives we as a nation have. Firstly, to my mind, the learnings from our epics like the Mahabharata and Ramayana and scriptures like Vedas are legendary. Secondly, the principles of the well-framed Constitution of India are our strongest guiding force. Thirdly, the history of the freedom struggle inspired by non-violence, led by Mahatma Gandhi, are exemplary in today's geopolitical world. Technology can be a great social and economic leveler in the 21st century. One is only limited
by what they can dream of in the modern world. I believe that we can make the world a better place by hard work, using benefits of technology, coupled with our rich heritage, culture, and value systems. India, as President Sir has just said, that they demonstrated leadership during the COVID time. He already mentioned how not only we were able to administer vaccines to our population, but we exported them in a timely fashion to a large number of countries. We definitely stood up to our motto of Vasudevai Kutumbakam. The world is one family. The government also ensured free food supplies to the entire population during this period, rooted in our belief in the mixed economy and not purely a socialist or a capitalist one. Many successes, as mentioned, like Digital India, low external debt, young population, direct benefit transfer, abrogation of Article 370, etc., work in favor of India. However, may I caution the call for a better attitude towards foreigners, for example, as India must tap its tourism potential too for it to be a Vishwaguru. We need to reduce the divisiveness amongst people and form a more inclusive and happy society. We cannot rest on our achievements. We must beat our climate goals, lift people out of poverty, achieve higher skilled literacy and better growth rates. In the last few lectures, I spoke about some of the great qualities of my late grandfather, Dr. Rajaram Jaipuria. These qualities screamed for a lecture series in his memory. Some noteworthy qualities mentioned about him already was that he was a Karam Yogi, great believer in the Gita, extremely fair in his business dealings, eternal philanthropist, optimist, socialist, and hardworking person who cared deeply for the development of not only his industry, but also the nation as well. He had as his partner my grandmother, who was a great balancing act to his personality. With these words, I once again thank Shri Ramnath Kovind ji and all of you for being part of today's lecture. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. Now, may we request you all to rise for the national anthem. We request everyone to sing along. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you, and please take your seats. With a profound sense of gratitude and a spirit of fulfillment, we conclude today's ceremony. Thank you for your presence and participation. I request everyone to remain seated as our esteemed chief guest is being escorted. We request everyone to remain seated and maintain decorum.
Jaipuria members, group, family members. Left. To their left. Their left. Yeah, your left. Now may I request the Jaipuria family members and distinguished guests to exit from the gate to your left. Yeah, your left, our right. जैसा है वैसे ही रहे. To your left. Your left. Yeah. Yes. Yeah. हाँ वो लेफ्ट हमारा वो उनके लिए लेफ्ट है हमारे लिए राइट है. हाँ. राइट तो उनके हिसाब से हम निकलना है. हाँ तो your left सही है ना. हाँ. बोल. Now may I request the Jaipuria family members and distinguished guests to exit from the gate to your left. I request the other members of the audience to remain seated. Your I request everyone to remain seated and maintain decorum. Students to your right. Students to और मैं इशारे यहाँ करूँ. बट ये तो अभी तो मेरे को मैम कि मैम
मैं बोल रहा हूँ ना ये वाला, ये बोलना है ना. May I now request the media members, students, and teachers to leave from the gate on your right in an orderly manner. Guys, please listen, guys. First JSB students, then SAJS Ghaziabad students, We request you all to maintain decorum. please move in an orderly manner. We request you all to please move in an orderly manner.